Hello children, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, 11th of class 11th mathematics. Now discuss the today topic of statics. Today at the topic of statics. Of exercise 15.3, question number 3, an analysis of monthly wages paid to the workers in two form A and B belonging to the same industry give the following results. The number of wage earners. Question number 3, number of wage earners. Number of wage earners firm A and firm B. Firm A and firm B. Now five 586 and 648. Mean of monthly wages. mean of monthly wage rupees 5253 and rupees 5253. That is variance of distribution of wages. Variance of distribution of wages 100 and 121. देखो यहाँ पर दो फर्म है, एक फर्म ए है और एक दूसरा फर्म बी है. Number of wage earners are the firm A 556. Number of wage earners are the firm B 648. Mean of monthly wages rupees 5253 and mean of monthly wages of the firm B 5253. Variance of distribution of wages is 100 are the firm A and 121 are the firm B. देखो फर्म ए और फर्म बी के लिए जो यहाँ टेबल दिया गया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है हमें विच फर्म ए और फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, पेज लार्जर अमाउंट as monthly wages. And the second question, which firm A or B show greater variability in the individual ages. अब यहाँ पर दो फर्म दिया हुआ है, एक फर्म ए है और एक फर्म बी है. एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस.
पेड टू द वर्कर्स इन द टू फर्म ए एंड बी। जो फर्म ए है और फर्म बी है उनको जो है मंथली वेजेस पर उनका हमें एनालिसिस करना है कि वो इंडस्ट्रीज़ में उन्हें जो दिया जाता है, जो पेमेंट दी जाती है, उसका हमें एनालिसिस करना है। हमें ये बताना है कि कौन सी फर्म लार्जर अमाउंट पे करती है, कौन सी फर्म स्मॉलर अमाउंट पे करती है। दूसरा कंडीशन ये है, हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी फर्म ज़्यादा वेरिएबल है, कौन सी फर्म जो है ज़्यादा वेरिएबल है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मंथली वेजेस है, जो मीन ऑफ मंथली वेजेस है फॉर फर्म ए एंड फर्म बी, फर्म ए और फर्म बी के लिए जो मंथली वेजेस फॉर फर्म ए है वो 5253 है और नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स फॉर द फर्म ए 586 है। यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मंथली वेजेस हैं फर्म ए के लिए वो 5253 है, जो मंथली वेजेस बी है, वो मंथली वेजेस है फर्म बी के लिए वो भी 5253 है। तो फिर जो है कौन ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है, कौन ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है। इस कंडीशन में नंबर ऑफ मंथली वेजेस ऑफ फर्म ए, मंथली वेजेस ऑफ फर्म ए रुपीस 5253 and number of wage earner equal to 586. So total amount paid equal to rupees 5253 into 586 and monthly wages of firm B rupees 5253 and number of wage earner equal to 648. So total amount paid equal to rupees 5253 into 648। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी ये देखेंगे। देखने से पता चलता है कि टोटल अमाउंट पेड ऑफ फर्म बी इज ग्रेटर देन द टोटल अमाउंट पेड ऑफ द फर्म ए। फर्म ए के कंपेयर में
फर्म बी जो है वो ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है फर्म ए के कंपेयर में, फर्म बी जो है वो ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है, इसलिए फर्म बी जो है वो ज़्यादा क्या होगा। Thus firm B pays the larger amount as monthly wages as the number of wages earners to the firm B. There are more than B are more than the number of wages. देखो क्या है, देखो अब यहीं से कंपेयर कर लेंगे हम कि टोटल अमाउंट पेड ऑफ नंबर ऑफ वेज अर्नर इन ग्रुप बी फर्म बी इज ग्रेटर देन द नंबर टोटल अमाउंट नंबर ऑफ वेजेज अर्नर इन फर्म ए। सो व्हेन वी आस्क दैट number of wages of earner in firm B is greater than the number of wages of earner in the firm A. Clear? Now next point, second question, which firm A or B have more variability or greater variability? कौन सी फर्म ज़्यादा वेरिएबल है? फर्म ए वेरिएबल है, अदरवाइज फर्म बी वेरिएबल है। तो यहाँ देखते हैं variance of distribution of firm A equal to sigma 1 equal to under root variance मतलब under root 100 that's equal to 10 and variance of distribution variance of firm A is equal to 100 and the standard deviation sigma 1 equal to under root 100 that's equal to 10 under root 100 that's equal to 10 and variance of distribution of firm B equal to 121
121. So standard deviation sigma 2 equal to under root 121, that is 11. अब यहाँ पे देखो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फर्म ए के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्म बी। फर्म ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और फर्म बी के लिए द मीन ऑफ मंथली वेजेस, the mean of monthly wages of both the firm A and B is 5253, that is same. मंथली वेजेस के लिए जो फर्म ए और फर्म बी के मीन है वो दोनों सेम हैं, बट देयरफॉर फर्म ए विथ greater firm B with greater standard deviation compare than the firm A, so the firm B is more variable compare than A. So the firm B has the greater variability, firm B has the greater variability of the firm B of the firm A with comparably. जैसे फर्म ए और फर्म बी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये मान लेते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वही वेरिएबल ज़्यादा होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।